Today we are going to see Darwin's theory, Charles Darwin's theory of natural selection, which is connected with evolution. So Charles Darwin, when we are observing him in a picture, we can see he is an old person. But no guys, when he was a young, he traveled nearly 5 years by a voyage. Voyage means by a ship in all over the world. And during his traveling, he collected lots of specimens of plants and animals. Not only collected them, he studied them. And based on his study, he predicted, he had given some information. After collecting various specimens of plants and animals and lots of observation, he has given a theory of natural selection in his book. And the book name is Origin of Species. बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में उन्होंने कुछ पॉइंट्स एवोल्यूशन से रिलेटेड मेंशन किए. अब ये जो पॉइंट्स है दैट इज अ थियरी रिलेटेड विद द एवोल्यूशन इज नोन एज थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और इट इज ऑल्सो नोन एज अ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. लेट अस सी in this theory which kind of points he mentioned related with the evolution. When you see around us various organisms are surviving, so every organism is try to survive their own life. So there is a competition of survival in between a organism, and this competition leads for a life threatening. That means every organism may cause a death of other organism. So every organism make a compete for a life threatening with each other. While a survival, you better know, a organism which is very strong, fittest, survive, and the weakest organism perish. Perish means dies. Now why this is happen and how this fittest organism form? This fittest organism form by a what? Proper adoption. They are adopting a required thing from the nature and they are doing a changes within them. इसका मतलब क्या है? जो ऑर्गेनिज्म नेचर में से रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या जो रिक्वायर्ड थिंग्स लेने के लिए तैयार है, इन शॉर्ट खुद में चेंजेस लाने के लिए तैयार है, such organism become fit and they survives. The organism who are not ready to change will definitely die. Organism who are fittest undergo for reproduction and they reproduces next feed generation. But now this feed generation having a variations with a proper adopted life. That means proper relevant characteristics which they get from the previous generation. And so on guys, the variations are always occurring from one generation to another. When these changes are occurring within organism, that is variations are occurring, these variations are totally natural. It is not deliberate. इसका मतलब क्या है कि जो changes organism में form होता है, positive या negative whichever, so that changes occurring slowly and naturally. It is not a planning. यानी मराठी में हमारे कहावत आहे पी हळद आणि हो गोरी. म्हणजे एक दिवसात आपण हळद दुधामध्ये टाकून प्यायलो तर गोरं नाही होत. But slowly changes occurs. Same things from a generation to generation changes are occurring within an organism. आज आप जो fit हो, it is just because of your previous generations they did a changes within them and now we are like this one. But now we want again next fifth generation. So guys we need to do a changes within us. हमारे जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को यदि हमें फिट पाने का है तो हमें अपने आप में कुछ चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस लाना जरूरी है. So this information suggested by him. बट एक ड्रॉबैक था डार्विन थ्योरी में. डार्विन ने ये सब चेंजेस, वेरिएशंस रिलेटेड टू इवोल्यूशन बताया, बट ही वाज नॉट एबल टू मेंशन
what type of changes, slow change होते हैं, कुछ changes fast होते हैं, and which are the exact factor to make a changes within one generation to another. Darwin was not able to say this information, but he just say the changes are occurring from one generation to another. The factor causing for a generation he was not aware. Guys, very first part of the lesson, very starting of the lesson, during heredity, we mentioned that DNA, genes, chromosomes, these are the factors causing changes or variations from one organism to another. ये हमें आज मालूम है, but during the Darwin's time, this word was not introduced or not knowable by them. डार्विन को DNA, जीन्स ये सब वर्ड्स नहीं मालूम थे, तो उसको ये नहीं मालूम था कि हाउ द वेरिएशंस आर अकरिंग इन दिस एवोल्यूशन. दिस इज व्हाट वन ऑफ अ लिमिटेशन ऑफ डार्विन्स थियरी. चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म इज टोटली नेचुरल, नॉट डेलिबरेट. इसका एक एग्जांपल है, इंग्लैंड में बर्मिंघम करके एक सिटी है. बिफोर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी इंग्लैंड में नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होने से पहले उस बर्मिंघम सिटी में टू काइंड्स ऑफ मॉथ्स वेर फाउंड. वन इज अ ब्लैक मॉथ एंड अदर इज अ ग्रे मॉथ. ब्लैक एंड ग्रे मॉथ्स, मॉथ मीन इंसेक्ट्स. अब ये जो इंसेक्ट्स है, ये मॉथ्स है, ये ट्रीज के बार के ऊपर यानी स्टेम के ऊपर सर्वाइव होते हैं. तो जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने से पहले स्टेम का कलर, बार का कलर ये ग्रे था. तो ये जो ब्लैक एंड ग्रे मॉथ्स में से ब्लैक मॉथ्स वेर इजीली सीन बाय द बर्ड्स एंड दिस ब्लैक मॉथ्स वेर बिकमिंग अ फूड ऑफ बर्ड्स. इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो ब्लैक मॉथ्स की नंबर है ये कम होने लगी और ग्रे मॉथ्स की नंबर बढ़ने लगी. नाउ when a number of industries establish, तो क्या होने लगा, इंडस्ट्री जैसे जैसे बढ़ने लगी वैसे पोल्यूशन का लेवल बढ़ा. पोल्यूशन बढ़ने की वजह से कार्बन कंटेंट एनवायरनमेंट में बढ़ गया और जो स्टेम बार का कलर पहले ग्रे था, नाउ बिकॉज ऑफ कार्बन लेयर इट बिकम्स ब्लैक. इसकी वजह से क्या हुआ, जो कुछ ब्लैक मॉथ्स बचे थे नाउ दे आर बिकम हिडन. वो छुपने लगे, ब्लैक कलर की वजह से वो हाइड होने लगे, स्टेम का कलर ब्लैक होने की वजह से. बट नाउ ग्रे मॉथ्स बिकम विजिबल फॉर द बर्ड्स एंड नाउ दिस ग्रे मॉथ्स बिकमिंग अ फूड ऑफ बर्ड्स. तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो पहले ब्लैक मॉथ्स की नंबर कम हुई थी, ग्रे की बढ़ गई थी. बट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, चेंजेस इन एनवायरमेंट, इसकी वजह से क्या हो गया अभी ग्रेज आर बिकमिंग अ फूड ऑफ बर्ड्स. नाउ ग्रेज की नंबर कम, ब्लैक की नंबर इंक्रीज होने लगी. सो दिस इज व्हाट गाइस चेंजेस कैन कॉजेस इन ऑर्गेनिजम्स अवेलेबिलिटी, ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल. फ्रॉम डार्विन्स थ्योरी आई वांट टू सजेस्ट यू समथिंग विच इज नॉन टेक्सचुअल. टेक्स्ट बुक का नहीं है एंड एग्जाम से भी उसका कुछ लेना देना नहीं है, बट इट इज रिलेटेड विथ अवर लाइफ. Guys, if we are not ready to change, we will definitely die. तो हमें खुद में चेंजेस लाना ज़रूरी है एंड दिस चेंजेस मस्ट बी रिलेवेंट चेंजेस, यानी पॉझिटिव्ह चेंजेस. स्वतःमध्ये बदल घडवून आणल्याशिवाय, चांगले बदल घडवून आणल्याशिवाय आपण या जगात फिट राहू शकत नाही, हे लक्षात ठेवा. जर तुम्ही आता 10वीत आहात, इफ यू आर इन SSC गाइज, नाउ you need to do changes within you. So ये changes आपको खुद में डेवलप करने पड़ेंगे. Then it will happens slow by slow naturally. पहले कुछ दिक्कत होगी, थोडासा त्रास होईल पहिल्यांदा अभ्यास करताना, सवय नसल्यामुळे प्रॉब्लेम होतो, पण डेफिनेटली गाइज यू विल डू द बेस्ट. सो डार्विन्स थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ाई कर सकते हैं, बट एज वेल आपके लाइफ टाइम के लिए भी आप इसको पॉजिटिवली देख सकते हैं. So take care. Guys, number of points for this natural selection I sort out in my notebook. You can copy this one and
write down in your notebook. Theoretically, if I want to say much more on a Darwin's theory, it is too much big, बट हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान देने का है कि हमें एग्जैक्टली क्या लिखने का है एग्ज़ाम में. सो दिस पॉइंट्स यू कैन एंटर इन योर नोटबुक. थैंक यू. ठीक से रीड करना एंड यू कैन मेक योर ओन स्टेटमेंट्स ऑल्सो. इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि जो मैंने लिख के दिया वही आपको पढ़ के लिखने का है. यू कैन मेक योर ओन कंक्लूजन्स. यू कैन कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेम वन ऑल्सो.